Assalamu alaikum dear students, welcome you all from Seed International School System. Our today's topic is for class 8th, 9th and 10th. And our topic is parts of speech. You people know that there are 8 parts of speech and I will name of all these 8. First is noun, second pronoun, third verb, fourth adverb, fifth adjective, sixth preposition, seventh conjunction and eighth interjection. There are 8 parts of speech. Now we will study first part of speech, which is called noun. And keep in mind that this parts of speech topic is very important according to examination point of view, because 5 MCQ multiple choice questions are selected in federal board examination. Therefore, concentrate on this, and these topics are very important. First of all, we will study about noun. What is noun? First of all, we will define noun. Noun is the name of person, place or thing. For example, anything, lot of things around us, let's say chair, table, fan, wall, blackboard, whiteboard, pen, pencil, boy, girl, Pakistan, these all are called nouns. There are 2 main kinds of nouns. One is common noun and the second is proper noun. Then these 2 are further divided into next 6 more. First of all, I will call their names. First is proper noun, second is common noun, third countable noun, fourth uncountable noun, fifth abstract noun, sixth material noun, 7 collective noun and 8 compound noun. First of all, we will study about proper noun. प्रॉपर नाउन आपने उर्दू में भी पढ़ा होगा, इसमें मार्फा, जिसमें किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम लिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, इसमें मार्फा या प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, name of rivers, mountains, places, etc. These all are called proper nouns. For example, newspaper name Jang, Daily News, Noy Waqt. Then we name of rivers, Indus River, Jhelum River, Ocean, Pacific Ocean, Atlantic Ocean, and all the mountains, let's say K2, Mount Everest. These all are called proper nouns. Proper noun also name of person. For example, Qaid Azam, Allama Iqbal, Ali, Ahmed. Then name of countries, America, Pakistan, Japan, France, etc. Now the second one is common noun. Common noun is the name of common things. For example, book, chair, pen, cup. उर्दू में हम इसे कहेंगे इसमें नकरा, जिसमें आम चीज़ों का इस्तेमाल हम करते हैं. These are called proper. Chair, table, board, these are called common nouns. Now we will shift about collective nouns. Collective nouns is, these are the things which can be counted. Countable noun are those nouns which can be counted. For example, 10 books, 3 pencils, 8 copies. The things which can be counted, these are called countable nouns. Number 4th, uncountable nouns. These are the things which cannot be counted. For example, hair, stars, milk, water, grass, fruit. These all are called uncountable nouns. Now 5th one is abstract noun. Abstract noun is that noun which we cannot touch, but we only feel, which only exist in our mind, mean which we can feel only. For example, love, respect, honesty, hatred, sadness, happiness. These all are called abstract noun. We cannot touch happiness. We can only feel happiness from the face of a person, that a person is happy. These are called
abstract nouns. Next one is material noun. Material noun is that type of noun from which other things are made. It's the name of matter. Matter is that thing which has mass and occupies space. We all are matters. Water is matter, ice, water, chair, table, these all are matters. Material things are those, for example, let's see, wall. Wall is made of bricks, cement, then bricks and cement are called material noun. Bread is made from flour. We eat bread in the breakfast. Bread is made of flour. Flour mean आटा, FLOUR. Bread आटे से बनती है, तो bread is made of flour. तो flour क्या है? Flour material है जिससे bread बनी. Material noun never take any article. They never form their plural with S or ES. इनमें आर्टिकल होता है ए, एन और दी. ये 3 आर्टिकल होंगे. ये यूज़ नहीं होते इस मटेरियल नाउन के दौरान. जैसा देखें, ब्रेड इज़ मेड ऑफ फ्लोर. फ्लोर से पहले दी नहीं लगा हुआ या ए या एन यूज़ नहीं हुआ. इट मीन्स कि ये कौन सी नाउन है? ये मटेरियल नाउन है. ब्रिक्स, वॉल इज़ मेड ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स, इसमें आपका आर्टिकल यूज़ नहीं है. तो ये अब मटेरियल नाउन होते हैं फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड. देन collective noun. Collective noun, let's see, you have all are fond of watching cricket matches. There are 11 players in a cricket team, and when we collect these 11 players and we give them a name, team, it is called collective noun. There are many members in our family. In our home, we live together, father, mother, brother, sister. This one name we give this, and this is called family. Then we are a nation. When all Pakistanis combine together, one word is given to them, and this is nation. Jury. When panel, jury. These are all called collective nouns. Flock of birds, परिंदों का घोल, जो परिंदे उड़ के जा रहे होते हैं ऊपर, उसे हम कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का गला, जिसमें बहुत सारे आपने देखा होगा भेड़ बकरियां जा रही होती हैं, उसे हर्ड कहते हैं, HERD. फ्लीट ऑफ शिप्स, FLEET, फ्लीट ऑफ शिप्स. बैरी बेड़ा, जिस तरह ये बहुत सारे बैरी जहाज या शिप्स आ जाए, उसे हम फ्लीट कहते हैं. वो इकट्ठे होकर उनको एक नाम दे देंगे जो क्या होगा? फ्लीट. ये सब के सब क्या होंगे? हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन. टीम है, टीम, ज्यूरी, फैमिली, नेशन. ठीक है. ये क्लास, जब आप सारे मिल के क्लास में बैठेंगे, एक फॉर एग्जांपल 10, 20, 25, 30 बच्चे बैठ क्लास में बैठेंगे, हम उनको एक नाम दे देंगे, ये क्लास है, क्लास 9th, क्लास 8th. तो वो भी कलेक्टिव नाउन में, क्लास भी कलेक्टिव नाउन में आएगी. देन कंपाउंड नाउन. इट इज़ अ नाउन विच इज़ मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड. फॉर एग्जांपल वाइट बोर्ड, 2 वर्ड्स मिले हैं तो ये एक नाउन बना है. वाइट और बोर्ड 2 वर्ड्स हैं, ये मिल के सिंगल वर्ड में कनेक्ट, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं. वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, एक्सरे. These all are called compound nouns. Some more examples you can say: sofa set, bed sheet. These all are called compound noun. Is that noun which is made from 2 words, 2 noun you can say, 2 noun: bed sheet, whiteboard, blackboard. These are called compound nouns. Now we will shift towards its practice. Love begets love. मोहब्बत को मार देती है. द अंडरलाइन वर्ड, अब इसमें MCQs है, मल्टीपल चॉइस हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन. तो इसमें आप क्या लिखेंगे? ये नाउन है. तो अगर वो टाइप पूछे कि लव किस टाइप का नाउन है, तो आप कहेंगे ये कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. बुक कॉमन नाउन में आएगा. नंबर 3, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. वाटर कॉमन नाउन. ज्यूरी मैंने बताया था, एक ग्रुप ऑफ जजेस, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये भी नाउन है और ये कलेक्टिव नाउन में आएगा.
ज्यूरी कलेक्टिव नाउन में आएगा क्वेश्चन 4 में। फिफ्थ, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। हैबिट आपका आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि हैबिट को आप जो है वो टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं कि इसकी आदत अच्छी हैं या बुरी हैं, उसकी वो बॉडी एक्शन से आप फील कर सकते हैं। गोल्ड, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड मेटल है, ठीक है। तो गोल्ड को हम क्या नाम दे देंगे? मटेरियल, क्योंकि गोल्ड से मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। मटेरियल नाउन इज़ दैट नाउन फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड। मैन काइंड, इंसानियत, शुड लव नेचर। तो मैन काइंड जो है वो आपको पता है कि सारे इंसान शामिल हो जाते हैं इकट्ठे करके इसको, तो ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। राबिया बसरी वाज ए सेंट, एक सूफिया थी वो, तो इसको हम क्या कहेंगे? नाम है इनका, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। राबिया बसरी वाज अ सेंट, तो ये प्रॉपर नाउन है। इसमें वो ऑप्शन कलेक्टिव लगा वो गलत है, इसमें आप प्रॉपर नाउन लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। 9 में है ही इज़ द स्टूडेंट ऑफ फौजी फाउंडेशन कॉलेज। अब ये प्रॉपर कॉलेज का नाम आ गया है, तो ये प्रॉपर नाउन आ जाएगा, इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। फिर आ गया साइलेंस। साइलेंस जो है वो खामोशी को आप टच नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रॉपर नाउन। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को भी आप टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कमेटी, कमेटी के भी मेंबर होते हैं, 3-4 मेंबर मिलके या 6 मेंबर मिलके कमेटी बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन में आएगा ये। माई फैमिली, फैमिली, फैमिली भी क्या मैंने बताया कलेक्टिव नाउन है। क्लीनलीनेस, सफाई, सफाई को हम टच नहीं कर सकते, हम अपनी जो सेंसेस हैं, सेंस ऑफ साइट, देख के हम बता सकते हैं ऐसे जहाँ जहाँ सफाई है, तो ये किस में आ जाएगा? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, फील कर सकते हैं हम इसको। फिर उसके बाद आ गया आपके पास वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन। ब्यूटी, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पुलिस, कलेक्टिव नाउन। इज ब्रदर इन लॉ, कंपाउंड नाउन। यू मस्ट हैव पेशेंस, PATIENC, पेशेंस कहते हैं सब्र को, तो सब्र भी हम फील कर सकते हैं, तो ये भी कलेक्टिव नाउन में आएगा। ये पूरी एक्सरसाइज है, ये जितना होमवर्क है ये सारा आपने अपनी नीट कॉपीज़ पे लिख लेना है, पूरी नाउन, इसकी काइंड्स और इसकी जो नाउन की प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ क्वेश्चन, ये सारे आपने अपनी नोटबुक्स पे लिख लेने हैं। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी आपको इसी तरह से मिलता जाएगा 1 बाय 1। तो आपका ताकि जितना फर्स्ट टर्म का सिलेबस है इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि वो 10 जुलाई तक कंप्लीट कर दें, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो, अगर स्कूल ओपन ला कर स्कूल ओपन हो जाए 15 जुलाई तक नहीं होते, तो फिर हम जो है वो 11 जुलाई से हम सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।